समय मिल जाता है, एंड दैट पर्टिकुलरली। और मूवमेंट आप देखो, जैसे यूएसडी में अपसाइड मूवमेंट है, आप जैसे ही उसी टाइम पे गोल्ड में देखोगे, सो गोल्ड में आप अगर 6 बजे के टाइम पे देखते हो, सो जस्ट सी दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो ये एक कैंडल जो है वो आपको मूवमेंट देता है अराउंड 50 पिप्स का, राइट। तो अगर आप एक भी मूवमेंट ले लेते हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। सो दैट्स हाउ वी ट्रेड ऑन न्यूज। आई बात समझ में? एनीवन इज हैविंग सम डाउट? करेक्ट? क्या बोले? हाँ, तो इस हिसाब। और दूसरा सिनेरियो होता है कि न्यूज में अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो कुछ मत करो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में। डोंट डू एनीथिंग, राइट? या आई जस्ट रियलाइज्ड। तो डोंट डू। क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, अभी स्टार्ट किया मैंने। So always keep in mind that if you don't know कि मार्केट में जो न्यूज आने वाला है वो किस हिसाब से एक्ट करेगा, मार्केट के लिए बुलिश एक्ट करेगा या बियरिश एक्ट करेगा, ट्रेड मत करो। ट्रेड में हो, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, एग्जिट करो उस ट्रेड से, ठीक? अंग्रेजी तो नहीं आती है भैया हम तो। ओके। So if you are in trade, for example, let's say that you are in buy side and you don't know that what to do in that situation, if market is whether market is going to go against, whether market is going to go in your direction. So if you don't know, so what will you do in that particular situation? In that particular situation, it is better to exit the trade. Exit the trade and wait until and unless you got some confirmation from the market that okay, now market clearly symbols that it is going to go down because news comes, let's say bearish, and I have also some technical data which signifies that market is going to go bearish. But if you are so assured that I have some confluences in the market and market is definitely going to follow my, so this technical analysis is going to fail because market is being moved by fundamental, right? So normally what happens that market definitely on 15-minute time frame, on hourly time frame, on 4 hour time frame, market moves on definitely on technical analysis. But what happens that whenever it comes to news, that the news is about to come, so at that particular point, just remember that market is going to move with fundamentals. Your technicals are being destroyed, you just don't even know that okay, my technical got destroyed. So that's why what happened with me, I I thought that it is going to go down, right? But what I did, I was short on USD, and I was also short on XAU USD, right? The reason being that I definitely know that one of my trade is going to hit the stop loss, right? One of my trade is going to hit the stop loss because both of them are negatively correlated. Like if USD goes down, gold is supposed to go up. Is if USD is going to go up, gold is supposed to go down, right? So if I talked about XAU USD, so XAU USD is having good technical confluence, which also saying that it is supposed to go down, and it definitely started to go down. So I was like, if I hit the stop loss, so USD will take my stop loss of 20, 25, 30 at max. But if my XAU USD gave the profit, so I'm going to make a lot of profit. And that same thing happened. XAU USD hit, USD stop loss hit. I don't care, right? So that's how you can also utilize the concept of correlation for hedging, right? Because they are both definitely they are negatively correlated, so they are going in up their different direction, and you can take the advantage of that. Okay, so that's how we trade on fundamental. Now coming toward the chart pattern, right? Is there anyone who is not able to understand what I'm trying to say? आ रही है सबको बात समझ में?
ये इवेंट का अपने को चेक करना है, क्योंकि इवेंट का चेक करने से ना आपको समझ में आएगा कि किस टाइम पे न्यूज है मार्केट में, राइट। हाँ, किस टाइम पे क्या न्यूज आने वाली है, किस टाइम पे कौन सा पॉपुलर इकोनॉमिक इवेंट होगा, तो उससे क्या होता है ना, बहुत बार आप मार्केट में देखते हो ऐसे एकदम आप ट्रेड कर रहे हो, रैंडम मूवमेंट आ गई, आपको रियलाइज ही नहीं है कि क्या हो रहा है उस टाइम पे। वहां पे दो सिचुएशन होते हैं, या तो आप ट्रेडिंग व्यू पे नीचे जाओ, और यहाँ पे आपको नीचे में अगर देखोगे तो ये दिखेगा, ये छोटे छोटे गोल गोल, ये दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे आपको ये भी न्यूज इंडिकेशन है, ये न्यूज इंडिकेशन है, राइट। इसका मतलब वही है, लाल मतलब खतरा, येलो मतलब ठीक ठाक, इस हिसाब से, राइट। लाल मीन्स डेंजर, सो द बेटर यू विल गो ऑन दिस इकोनॉमिक कैलेंडर, और यहाँ पे आप जाके देख लो कि कौन कौन सा लाल है। अब जैसे एक और अपने पास है, वी हैव फॉरेक्स फैक्ट्री, राइट। अब वी हैव लेट्स से फॉरेक्स फैक्ट्री, और फॉरेक्स फैक्ट्री में आप अगर आप जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक इवेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैलेंडर है, कैलेंडर पे आपने क्लिक किया, कैलेंडर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, सो जस्ट सी दिस, राइट। ग्रीन, येलो 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 येलो, बट June 1 वी हैव रेड, ये रेड का मतलब है खतरा, खतरा फॉर एयूडी पेयर्स, आई बात समझ में। फिर यहाँ पे 7:30 बजे देखोगे, कैड, कैड रेड, यूएसडी रेड, सो खतरा फॉर कैड एंड यूएसडी पेयर, विच मीन्स अ सेंसिटिव न्यूज विच कैन लीड्स टू एक्सट्रीम वोलेटिलिटी फॉर कैड एंड यूएसडी पेयर। तो इस हिसाब से वी प्लान आवर ट्रेड, आई बात समझ में। ओके गुड, नाउ टॉकिंग अबाउट चार्ट पैटर्न, तो चार्ट पैटर्न तो गूगल कर ही लेता, चार्ट पैटर्न्स। गूगल में फूल क्यों बना हुआ है यार, ये एटम्स है क्या? तुम लोगों को भी दिख रहा है, सिर्फ मुझे ही दिख रहा है ये? दिख रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। आज किसी का जन्मदिन है क्या? ओके, कौन सा बढ़िया रहेगा, ये वाला ठीक है। हम्म, ये यहीं पे देख लेता हूँ क्या उधर जाएंगे। चलो यहीं पे देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न की अगर अपन बात करें, तो तीन तरह के चार्ट पैटर्न पाए जाते हैं। पहला रिवर्सल पैटर्न, दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न, और तीसरा क्या होता है, नाम किसी ने सुना है? नहीं नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होता है। इस पैटर्न, बायलैटरल पैटर्न का नाम सुना है किसी ने? नो। नॉर्मली अपन जो है, अपन इसको कहते हैं इनडिसीजन पैटर्न, राइट। जो पैटर्न आपको कोई भी डिसीजन देने में सक, मतलब सक्षम नहीं होता है, सो टेक्निकली इट इज इधर बुलिश पैटर्न, छोड़ो रिवर्सल कंटिन्यूएशन, ध्यान रखो या तो बुलिश पैटर्न मिलेगा या फिर बियरिश पैटर्न होगा, राइट। और या तो न्यूट्रल पैटर्न होगा, जस्ट लाइक कैंडल स्टिक, राइट। सो बुलिश पैटर्न का मतलब होता है इफ समथिंग इज डाउन, राइट, सो नाउ इट इज प्लानिंग टू गो अप, which is reversing its direction, so it is going to go up. If something is up, so it is supposed to go down, so ये एक bearish pattern, ये bearishness show कर रहा है, market is getting to go down. Similarly we have head and shoulder, so it is supposed to go down, so it is a bearish pattern. But inverted head and shoulder, it is a bullish pattern, right. We have symmetrical triangle, it is a neutral pattern, क्योंकि हमें पता नहीं है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट। अब देखते हैं कि ये पैटर्न रियल कैसे होते हैं, और ये सब काफी, बस सिर्फ सिर्फ इतना ध्यान रखो, यू गाइस जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट कीप इन माइंड दीज थिंग जस्ट फॉर नॉलेज, you are not going to trade the pattern like it is written at this particular point. We don't trade patterns like this, okay. So just remember that we have patterns. So first pattern of reversal pattern we talk about, so we have double top, and always keep in mind that whatever happens in the bearish market, whatever happens in bulls market, just
We have opposite of that in bearish market. So for example, if we have a double top pattern or M pattern in bullish market, so we have a W pattern in case of bearish market, which signifies the reversal. So यहाँ पे if you will keep a mirror right at this particular position, they are inversion of each other, right? So the same thing happens here. If you will talk about reversal pattern, so what happens? We find in the chart that price goes up, it takes some resistance at this particular point, then it comes down. Obviously, sellers tried to sell. Then here at neckline, it takes the support because buyers are like, okay, now I'm going to buy this particular thing. So buyers again buy it. And here, if you look, so this will act as a zone, which is a supply zone, and price started to fall, right? It started to fall, and we are going to take the this much of target, right? We are going to take this much of target. Traditionally, in book, it is written that once we break the neckline and then we enter, then target, we have stop loss. Bullshit, right? Now, let's see that how it looks in real life. The double top. So, where is double top? It is the particular pattern. Okay, so I guess I have found a double top. It's much likely to be head and shoulder. Here we have a double top. So price goes up, it comes down, it again goes up, and then it comes down. Technically, in books, in any kind of technical analysis book, you will see that once price break this particular level, you are going to sell, and this level will be your stop loss level, and this much level will be your target level. Correct? So tell me that what if I will sell at this particular position? So am I supposed to take this much of target only? No. Why should I leave this much? Right? So I curative strategy that I trade double top and I take this much of target, right? Approximately this much, or this much. Depends upon the scenarios. So we are going to understand that how I will take this much of target. How I trade the same with double bottom pattern. I buy at this particular point, sell at this particular point here, wherever, right? But just for now, just understand that price goes up, comes down, again goes up, and when it comes down, making a double top at this particular position or M pattern. So we can say that this is a double top pattern, right? Similarly, we can find some double bottom. So if you see price comes down, again goes up, then comes down, and it again goes up. So this W pattern is known as double bottom, right? So we have double tops and double bottom. They are highly effective chart patterns. Then the next is head and shoulder pattern. So head and shoulder, it is more like a human being. So more like a human being means what? Price goes up, right? It makes a shoulder like this, then a neck like this. Sorry, then a neck, and but then again we have a shoulder. So we have a head. Here we have a head. We have two shoulder as a human, and in between we have a neck. So gardan kati, price is supposed to go down, right? The same thing happens in the bear side, that price is in downside and it tries to go up. So it makes a shoulder, then again price pattern, candlestick pattern combines and makes this formation, like it makes again a shoulder. So once this particular neckline support area breaks, the price is supposed to go up. So now we can plan our trade accordingly. So let's say that how it looks on our chart. Okay, so let's see. If I'll talk about head and shoulder patterns, so let's see. Here we have price comes, goes up, comes down, then again goes up, comes down, then goes up, then comes down. So you just need to short at this particular position and you can expect this much of target.
So if I'm not wrong, you can expect this much of target, and you got no target, right? Now, again, we have an inverted head and shoulder. Price comes to neck, price breaks the neckline. So can you tell me that is it a successful head and inverted head and shoulder or not? Hmm? Who is this? No. Who is this? It is. Is it a successful head and shoulder? Okay. Any more answers? हाँ. हेलो. अरे बोलो भाई. सक्सेस नहीं है. एक बात बताओ. This formation starts to form from at this particular position, right? It comes down, making a inverted shoulder, then again comes down, making an inverted head, then again comes down and started to go up. So technically, its neckline is this particular level, right? And from the position it started to form, it is this position. So definitely it gave a breakout and you have your target hit. Now you guys are like, if I take this trade, where is my stop loss, right? So you are not going to take this trade. The reason is it is not valid risk reward ratio. Understand this thing? So this formation is perfectly fine formation, right? It does it break the trend line, but here in this scenario, the point to be remembered is it is having very less amount of target, which makes it a worse trade. So we are not going to trade such patterns. Understand this thing? So this guy is correct. This guy is not correct. Okay. तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न बनता है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ चार्ट पैटर्न व्हिच लुक्स लाइक दिस, एंड दिस इज डेफिनेटली a descending triangle chart pattern, right? We will see later how descending triangle chart pattern looks. So in this particular descending triangle chart pattern, let's say price goes up to this level and then it comes down, right? So is it a fake out or a good trade? I mean, genuine trade according to technical analysis. हाँ. अरे जेन्युइन तो तब ना होता है जब ऊपर चला जाता. जेन्युइन तो हुआ ही नहीं है. अच्छा, और कोई जवाब किसी और के पास? अरे बोलो. हम्म. हम्म. ओके. ठीक है. काम चल जाएगा, राइट? तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको एक फेक आउट कंसिडर करते हैं, राइट? बट जिनके पास बुद्धि है, उनको पता होता है कि ये एक फेक आउट नहीं है, बल्कि ये एक टारगेट हिट है, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो छोटा है. टारगेट इज स्मॉल. तो ये ट्रेड टारगेट हिट करता है और फिर रिवर्स हो जाता है. इसमें इस ट्रेड की कोई गलती नहीं है, राइट? इसमें गलती इंसान की है, क्योंकि उसने ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया. तो अगर छोटा ट्रेड, छोटा चार्ट पैटर्न बनता है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ एनी चार्ट पैटर्न इज स्मॉल, your target would be definitely small. If any chart pattern is large, your target will be large. Understand this thing?
So don't do these type of mistake in future. Like if you have symmetrical triangle pattern and it moves like this, so first you will plan to take this much of target it like this, and then you will trail your stops accordingly. Here, if it gives now downside breakdown, so then you will take your target first target like this, and then you will trade your stop loss accordingly. So that's how we trade, right? Okay. Now, and the people who don't know, they keep blaming the market, like blame market hit my stop loss and all that. The same situation happens at this particular point. If you see, इस पर्टिकुलर ट्रेड में किसको क्या समझ आ रहा है, ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे? तो here if you will see the price is going to go up. जैसे ये प्राइस ऊपर जाती है and it gets trapped inside a triangle, right? It gets trapped inside a triangle. So this kind of chart pattern definitely known as ascending triangle chart pattern, क्योंकि प्राइस जो है इंक्रीज हो रही है. और हमेशा ध्यान में रखो इस बात को कि until and unless chart pattern like a candlestick pattern, sorry, triangle pattern, until and unless it gave the breakout in any particular direction, we cannot say that price is going to go in which direction, right? So we cannot say until and unless it breaks either up or it breaks either down, we cannot say that price will go in that which direction. There are lots of people who are like, they are trading at this particular position, they are at this particular point, and then they predict that market is supposed to go down because ascending triangle breaks in downside and gives like this profit. Ascending triangle breaks in upside and give this profit. This is not fact. Until and unless we have a breakout, we cannot say anything in that particular situation. So breakout means what? We have the levels of resistance at this particular point, and once it breaks, it gains some momentum, and it is like that. Correct? So this chart pattern is known as ascending triangle. Once it is ascending triangle chart pattern, we also have a descending triangle. So how descending triangles look like? We have a support and then price comes down like this. Obviously, what happens in here, it just get reverse of it, right? It is vertical, horizontal, inverted. Yeah. नहीं, रिटेस्ट का वेट नहीं करोगे. अगर चार्ट पैटर्न छोटी दिख रही है तो उस केस में मत करो रिटेस्ट का वेट, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम रिटेस्ट का वेट करोगे तब तक वो टारगेट हिट कर देती है, कोई मतलब नहीं होता है. हाँ. अगर मान लो, हाँ, आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? आप अगर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हो, दो तरह की होती है इस सिचुएशन में. यहाँ पे अगर ट्रेड इनिशिएट करते हो, मान लो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ट्रेड ऊपर जाता है, अगर ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे देख लेने के लिए सिर्फ हम लोग चार्ट पैटर्न नहीं देखते, चार्ट पैटर्न के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाता है. बट इफ वी टेक ट्रेड लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर जाके यहाँ ऐसे रिटेस्ट करने के लिए आता है, सो वी हैव आर वन पोजीशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर यहाँ पे फिर से मुझे कैंडल दिख रही है विच इंडिकेट्स दैट इसने रिटेस्ट करके अपसाइड लिया, तो फिर आई विल ऐड माय अनदर पोजीशन एंड दिस ट्रेड विल गो ऑन. तो अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हो, रिटेस्ट आपको लगता है कि रिटेस्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ऐड कर लो पोजीशन एक और. अगर आपको लग रहा है कि ये डाउन हो गया, मतलब फेक आउट हो गया है, तो उस समय एग्जिट करो एंड trade according to your fake out strategy, right? So now, okay, so हाँ, ये वाला नहीं, इस पे हरी करके बाय नहीं करेंगे. अरे एट 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 हाँ, एटलीस्ट थोड़ा सा समय तो दो इसको, मतलब ब्रेकआउट होने के लिए, कैंडल क्लोज होने के लिए थोड़ा समय दो इन सब पेयर्स में. लेकिन हाँ, हाँ, कैंडल क्लोज होने का एटलीस्ट वेट करो. बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम लोग वेट नहीं करते हैं कैंडल क्लोज होने का. मैं कोरिलेशन में बताऊंगा ये चीज कि कब हम लोग कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते हैं, ठीक है?
बट नॉर्मली सिनेरियो में आप कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हो, इतनी भी क्या जल्दी है ना। राइट राइट, सेम सेम सिनेरियो यहाँ पर भी होती है, ये देख लो आप। Right. तो इन इन सब सिचुएशन में जब प्राइस एक क्रिटिकल लेवल पे रहे और आपको लगे कि इस लेवल से कुछ भी हो सकता है, और स्पेशली वो लेवल जो कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं ना कि आपको पता होता है कि सामने वाले को भी पता है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे आप लोग बाई ही करोगे अगर ऊपर जाता है तो उस लेवल पे और भी थोड़ा सचेत रहना पड़ता है हम लोगों को मार्केट में, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैप्स आउट देयर। आप बाय करोगे वो वापस से सेल में चला जाएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेनेवर इन डाउट, वेट फॉर कैंडल टू क्लोज। ओके, सो ऑब्वियसली वी हैव सीन, यहाँ पे अपन ने देखा असेंडिंग ट्रायंगल राइट हियर। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से एक असेंडिंग ट्रायंगल है, राइट। सो दैट्स हाउ वी स्पॉट असेंडिंग ट्रायंगल। अब कैसे स्पॉट करते हैं ये देख लो। मान लियो इसको भी हटा दिया अपन ने, इसको भी हटा दिया, जस्ट सेकंड। सो आई रिमूव दिस मच, दिस आल्सो एंड दिस मच। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस comes to this particular level, right? It comes to this level and comes down, goes down, comes to this level, goes down, comes to this level, goes down, and like this. So for example, मान लो आप जब ट्रेड कर रहे हो उस समय प्राइस इस ये आगे का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपने को इतना तो क्लियर हो गया कि प्राइस एक लेवल पे आती है और नीचे चली जाती है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक जोन बनाऊंगा। मैंने बना दिया एक जोन कि ये जो है बेटा ये इसका है सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन है मेरे पास, सो टेक्निकली व्हाट आई विल डू, मुझे एक चीज और दिख रही है कि मुझे हालांकि चार्ट पैटर्न पता है, तो मुझे ये भी पता है कि अगर मैं देख रहा हूं तो प्राइस ऊपर जा रही है। सो इफ प्राइस इज गोइंग अप by having some sort of resistance, then what we'll do, we are like okay, then we have found a pattern, which pattern is known as ascending triangle pattern, जिसमें ट्रेंड अप है और यहाँ पे एक सेलर का बैरिकेड लगा हुआ है कि सेलर डजंट वांट कि ये प्राइस ऊपर जाए, बट बायर्स भी कम नहीं है, दे आर लाइक दे आर पुशिंग द प्राइस, दे आर पुशिंग द प्राइस, वो लोग भी हार नहीं मान रहे। सो देयर इज ऑब्वियसली बैटल बिटवीन सेलर एंड बायर्स, एंड अल्टीमेटली हु विंस, दे वॉन द रेस, राइट। दूसरी चीज एक बात हमेशा ध्यान में ये भी रखना है आपको कि अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ, लेट्स से इट इज अ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, और यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव हो रही है, और यहाँ पे जाके एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आपको एक फॉर्मेशन मिलता है विच इज लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे आप प्लान करोगे कि ओके ये अगर नीचे आएगा तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाता है। जब हायर ट्रेंड लाइन बगल में हो किसी भी ट्रेड के, उस सिचुएशन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि उसके अपोजिट ट्रेड कभी इनिशिएट मत करना। उसके अपोजिट ट्रेड इनिशिएट करोगे, वो जाएगा ट्रेंड लाइन टच करेगा और फिर से नीचे आएगा, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस गया और तुम यू आर लाइक स्टॉप लॉस चला गया। बट इट इज डेस्टिन्ड टू गो देयर क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के बगल में है। तो वो जब ट्रेंड लाइन के बगल में कोई ट्रेड रहता है तो उस ट्रेड में हमेशा ध्यान में रखना, जैसे मान लो ये ऐसे फॉर्मेशन है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लेट्स से नीचे आता है और यहाँ पे जाने के बाद ये एक बुल फ्लैग या कोई फ्लैग बनाता है, यहाँ से ऐसे चैनल बन रही है, तो चैनल बन रही है और ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये जाएगा ट्रेंड लाइन टच करेगा और तब नीचे आएगा। तो इस ट्रेड में हमें नहीं एंट्री लेना है, हमें इस ट्रेड में एंट्री लेना है। आई बात समझ में, राइट। सो कीप दिस थिंग इन माइंड नाउ। So we have seen that double top, obviously then we have double bottom, we have head and shoulder, then we have inverted head and shoulder, neckline breaks, you are going to buy this particular thing. Then we have some wedge out there. अब what is the difference between triangles and wedge? Wedge की जो size होती है as compared to triangle छोटी होती है। Falling wedge छोटी size, rising wedge छोटी size। Rising wedge means what? Rising wedge means that price is going to go up, देन एक छोटा सा फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है इस हिसाब से वेज पैटर्न, और इसके बाद देयर आर हाई चांसेस ये अपसाइड ब्रेक दे दे, राइट। सो वेज आर नॉर्मली फिर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, अनटिल एंड अनलेस
ये ब्रेकआउट नहीं देगा, हम लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, तो वी विल वेट फॉर वेज टू ब्रेक। और ऑब्वियसली अगर वेज भी डाउन साइड ब्रेक होता है तो वेज इज स्मॉल पैटर्न, तो यहाँ पे इसका टारगेट इस लेवल का होगा, राइट। सो नेवर बी, सबसे पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करो ट्रेड लेने से पहले, बहुत हेल्पफुल होता है। अंटिल एंड अनलेस यू कैलकुलेट योर रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेड कितना भी सुंदर दिख रहा है, कितना भी प्यारा दिख रहा है, आप ट्रेड में नहीं जाओगे जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, कितना आपको मिलने वाला है, कितना आप गवा दोगे। सो वी हैव राइजिंग वेज एंड द सेम वे वी हैव द फॉलिंग वेज, जिसमें आप प्राइस नीचे जाता है एंड देन वी हैव सम फॉर्मेशन ऑफ वेज लाइक दिस। ओके, नाउ बताओ। ठीक है, सेम टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करो जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान किए हो। हाँ हाँ, तो हाँ फेक आउट है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, इफ यू प्लान समथिंग ऑन हायर टाइम फ्रेम तो ट्रेड करो हायर टाइम फ्रेम पे। मतलब हाँ, तो जैसे मान लो कि अगर 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में लियो तो 1 घंटे में वेट करो कैंडल क्लोज होने का, फिर ट्रेड लो। ठीक है, चलो। तो अब आ जाते हैं, ऑब्वियसली राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज अपन ने देखा, ये दोनों तरीके में मिल जाएंगे तुमको, अप साइड जाते हुए भी राइजिंग वेज, डाउन साइड जाते हुए भी राइजिंग वेज, वेट करो, जब तक ब्रेक नहीं हो ट्रेड मत लो। ठीक है, अब आता है बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल इज ऑल्सो नोन एज चैनल, राइट। चैनल क्या होता है, इस हिसाब से प्राइस चलता है। सो डेफिनेटली वी नो कि चैनल को ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ कोई है जिसको पता नहीं है कि हाउ टू ट्रेड अ चैनल? ओके, चलो देखते हैं। So if you ever found that we have some sort of resistance and we have some sort of support, so resistance is also known as our supply, and support you can say in easy word support ही रहना, तो डिमांड भी बोल देते हैं। अब क्या होता है कि if price comes to support, so it goes up, it reaches resistance, it comes down to the support level, again it goes up, then comes down, then goes up. That's how it works in a sideways market. So what you will do, जब जब price support पे आती है, so you will find some reason to buy. Once it reach to resistance level, you will find some reason to sell. Again, you will sell at this particular position, you will exit your trade, and here you can buy some position. Then again it goes up, you are selling, then buying, then selling, until and unless it breaks the zone. You are, you can do this continuously, right? You can also see in this particular trade, I can show you the live examples, just a second, right here. If you see, okay, so यहाँ पे what you will see, you will just see that price comes to the support zone, goes up, again comes go down, then goes up, then formations like this, comes down, goes up, something like this, and then यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जब जब ये इस जोन में आ रहा है तब तब ये गिर रहा है, जब जब ये इस जोन में आ रहा है तब तब उठ रहा है। तो मेरे को क्या समझ में आता है, ये जो जोन है ये इसके लिए डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है और ये इसके लिए सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। सो एट सप्लाई वी आर गोइंग टू सेल, एट डिमांड वी आर गोइंग टू बाय, इन इजी वर्ड्स। हाँ जी सर। क्या मालूम कैसे? अरे देखो सिंपल लॉजिक, यहाँ पे अगर अपन आते हैं एंड लेट्स से, मैं यहाँ पे चार्ट पे ही दिखाता हूँ, ये देख लो, जैसे
अपन ने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा था, राइट? तो कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए ये हो जाता है अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिल रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बियरिश पियर्सिंग लाइन मिल गई, मतलब ये जो हाफ ऑफ द बॉडी है उससे ज्यादा क्लोजिंग दिया है। द सेकेंड कैंडल ऑल्सो क्लोजेज एज अ बियरिश। ये एक सप्लाई जोन पे जब इस हिसाब की फॉर्मेशंस बन रही है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज अ गोइंग टू गिव अ रिवर्सल, राइट? रिवर्सल होने वाली है, ये एक ब्रेकआउट नहीं होगी। ब्रेकआउट कब होगी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सिचुएशन में जाओगे और आपको रियलाइज होगा कि यार ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे इतने सारे फाइटिंग हो रही है बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, सो इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट? अब यहाँ पे भी आप देख लो सेम सिचुएशन, इट मेक्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो अंटिल एंड अनलेस आई गेट सम वैलिड एंट्री कंफर्मेशन, मैं इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं करूंगा, ना रिवर्सल साइड में ना पर्टिकुलर इस साइड में। बट आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं तो टेक्निकली यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, राइट? बट ये जो है ये अभी तक जोन में ही है। सो अंटिल एंड अनलेस प्राइस इज इन द जोन, यू आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट द पोजीशन। बट यहाँ पे ये जोन से नीचे आता है, आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो पोजीशन। सेकेंड कैंडल ये बनेगी, आपको एग्जिट करना पड़ जाएगा पोजीशन, राइट? सो हमेशा कैंडल स्टिक के पास जाओ जब आपको रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट को ट्रेड करना हो तो, राइट? सो अच्छे कैंडल मिल गई, इसका मतलब इट इज गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छी कैंडल नहीं मिली, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। अब सिमिलरली यहाँ देखो प्राइस बहुत मेहनत से नीचे आता है और यहाँ पे आपको 3-4 लगातार अच्छे कैंडल, मतलब अच्छे कैंडल इन द सेंस बुलिश कैंडल मिल जाती है, विच मीन्स दैट ये एक बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। सो बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, सो आपके पास यहाँ पे सपोर्ट है, आपके पास बुलिश मोमेंटम है, आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, कुछ जो भी प्रॉफिट आपको बनाना है प्रॉफिट बना लो। अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो ऐसे हम समझते हैं कि रिवर्सल कहाँ पे हो जाएगा और कहाँ पे बेयर ब्रेकआउट हो रहा है। तो वी विल लुक ऑन कैंडल स्टिक एंड वी विल फाइंड। बोलो। चलो, अब राइजिंग वेज अपन ने देख लिया, बुलिश रेक्टेंगल देख लिया कैसे ट्रेड करते हैं। पेनेंट ट्रायंगल का ही छोटा भाई है, इसमें काफी छोटा पैटर्न बनता है, ये ऐसे करके जाता है, इतू सा यहाँ पे बनाता है, फिर ये ऊपर चला जाता है, राइट? तो ये जो भी फॉर्मेशन है ट्रायंगल के तरह, हमेशा उनमें ध्यान में रखो कि जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। और ब्रेकआउट होने, ऑब्वियसली ब्रेकआउट होने से पहले भी बहुत सारी चीजों को देखेंगे। देन वी, हम लोग अपना दिमाग सेट करके रखते हैं कि सारे सिचुएशन को देखने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है ये सारे ट्रायंगल जो भी हैं ये एक बियरिश सेंटिमेंट को दर्शा रहा है। तो अगर ये ब्रेक डाउन डाउन साइड में होता है तभी मैं ट्रेड लूंगा, अगर ब्रेकआउट अप साइड में होता है सो दिस मेरा प्लान वर्क नहीं करेगा और मैं ट्रेड नहीं लूंगा, राइट? सो अल्टीमेटली ये एक ट्रायंगल ही है, ये सारा एक, अगर आप देखोगे तो ये भी आगे चल के ट्रायंगल ही बन जाता है। सो ट्रायंगल में ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड लो, नहीं तो ट्रेड मत लो। वी हैव असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो नॉर्मली आपको 4-5 चीजें मिलती है मार्केट में जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी से इवॉल्व हुई है, और ऑल दोज थिंग्स आर नॉर्मली पैटर्न्स। अब मैं पैटर्न्स की भी अगर बात करूं तो जो फ्रीक्वेंट आपको जो पैटर्न्स मिलेंगे मार्केट में, तो फ्रीक्वेंट पैटर्न कौन कौन से हैं? सो फ्रीक्वेंट पैटर्न में आपका आ जाता है हेड एंड शोल्डर, राइट? You have head and shoulder, definitely inverted head and shoulder as well. You have double top, you have double bottom, you have ascending triangle, you have descending triangle, you have symmetrical triangle. नॉर्मली आपको इतने चीज को देखने में मिलता है। देर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक डायमंड, कप एंड हैंडल, राइट? तो वो सब नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, सो वी विल नॉट लुक फॉर दोज पैटर्न्स। बट
हेड एंड शोल्डर में भी तरह तरह के हेड एंड शोल्डर्स आपको मिलते हैं। वन फर्स्ट हेड एंड शोल्डर इज नोन एज सिंपल हेड एंड शोल्डर, और एक हेड एंड शोल्डर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर, राइट? So simple head and shoulder, it is like you have a horizontal neckline and पैटर्न कैसे मूव करता है, ऐसे करके मूव करता है, it moves like this in a head and shoulder. If we talk about a complex head and shoulder, so complex head and shoulder always forms on trend line, so it is like this. So it breaks and gives the target. So that's how we have two different type of head and shoulder pattern, and the probability of getting success of complex head and shoulder is greater than that of simple head and shoulders, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये जिस ढलान पे अभी चल रहा है वो ढलान टूटती है, तो वो एक ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन टूटने का इम्पैक्ट बड़ा होता है। हालांकि सपोर्ट का भी इम्पैक्ट बड़ा ही होता है बहुत सारे ट्रेड्स में, बट कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर गिव्स मोर परफेक्ट रिजल्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिंपल हेड एंड शोल्डर। ये ये सेम चीज आपको अपोजिट साइड में भी मिल जाएगी। तो जस्ट इफ यू फाइंड दिस, कीप अ वॉच until and unless it gives a breakout, you are not going to trade this pair। आई बात समझ में? इसमें अरे डिपेंड करता है यार मार्केट सिचुएशन पे, कभी कभी हो जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने इसको गिरते हुए ही देखा है। ये ऐसे रहता है, ऐसे करके बनता है और ये फट से गिर जाता है। हेड एंड शोल्डर में नॉर्मली बहुत कम रिटेस्ट होते हैं, डबल टॉप में भी कम रिटेस्ट होते हैं, इसलिए मुझे पसंद है डबल टॉप डबल बॉटम। डबल टॉप में रिटेस्ट होता है तो वो ट्रिपल टॉप बना देता है। मैं फिर से एक एंट्री ले लेता हूँ यहाँ पे, और फिर ये नीचे जाता है तो 1400-1500 डॉलर मिल ही जाते हैं। गोल्ड वोल्ड ट्रेड किया मैंने तो। ये बात समझ में सबको? हाँ जी। किस पैटर्न की? 50-60%। नॉर्मली 50-60% मैं बोल रहा हूँ आपको, जो हेड एंड शोल्डर हो गया, आपको डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-60% मिल जाएगी आपको, राइट? बट जिस हिसाब से हम लोग हाँ, जिस हिसाब से हम लोग डबल टॉप डबल बॉटम को ट्रेड करेंगे, हम आपको 70-80% मिल जाएगा। So there are two methods of trading double top and double bottom. The first method is traditional method। ट्रेडिशनल मेथड में आप डबल टॉप डबल बॉटम कैसे ट्रेड करते हो? यहाँ पे ये नेकलाइन का वेट करोगे, नेकलाइन ब्रेक होगा, तब आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करोगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, ये आप टारगेट लोगे। हम लोग ट्रेड लेते हैं, वहां पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, और ये अपना स्टॉप लॉस रहता है, और यहाँ पे कहीं पे भी आप टारगेट लगाओगे। तो आर फर्स्ट टारगेट इज 1:2.5, 1:3 आप रख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज, बट 1:2.5 तो मिल ही जाता है इजिली। समझ में? चलो, और कोई सवाल? हाँ, नेकलाइन तक आएगा ये श्योर ही रहता है, तो नेकलाइन तक तो ट्रेड टारगेट तुम ले ही सकते हो। हाँ, उसके बाद अगर नेकलाइन ब्रेक हुआ तो पोजीशन ऐड कर सकते हो। ये सब डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो। हाँ तो फिर बस, ये टेंशन मत लो ना, इसलिए तो देखेंगे ना कैसे होता है ना? सिर्फ प्राइस पैटर्न पे ट्रेड करना रहता तो फिर तो हो गया, तो ऐसा नहीं है। चलो। अरे तजुर्बा है भाई। क्योंकि देखो क्या होता है कि तुम लोग एक्सपीरियंस हो, जो हम बता रहे हैं ये सब चार्ट पैटर्न तुम लोग ऑलरेडी मार्केट में देख रखे हो। तुमको जो नहीं पता है वो स्ट्रैटेजी है जो नहीं पता है, थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, साइकोलॉजिकल लेसन कुछ देंगे जो नहीं पता होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक्स क्लियर ही है। हाँ,
अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, काम होने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, स्ट्रैटेजी इज लाइक ऐसी चीज है जिसको हम लोग पहले सब कुछ को कंबाइन करते हैं, और फिर एक चीज मिल के आती है अपने हाथ में जिसको हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, राइट? तो उस पे अपन ट्रेड करते हैं। अब लोगों के साथ इश्यू क्या हो जाता है कि while वी गो फॉर एनी स्ट्रेटजी, जैसा आई गेस आज तुमने भी एक स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग पूछा था मेरे से, राइट? तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जो भी था, तो वो वाला भी अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा था मुझे, क्योंकि मैंने भी चेक किया उसको कुछ चार्ट्स में, तो मेरे को भी दिखा वो इट इट इज गुड। बट चीजें वही है कि until and unless you backtest that particular thing, बैक टेस्ट से आपको सब कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप मार्केट में उसको अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, राइट? तो चीज ये है कि हाँ, कौन से? अरे कब मिला था आपको $170? उसमें कौन सा ट्रेड तो लिए थे, यूरो जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई कुछ तो भी था, वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी पता नहीं, याद थोड़ी रहता है। डबल टॉप था क्या? तो खुद नहीं पता है। हाँ। कल मिला था ना 5 के लॉट में, तो इसलिए चलो। कैसा लग रहा था? अच्छा होता है, होता है। नहीं, और जबकि खुद इन्होंने बोला कि अरे आज तो मार्केट ये होने वाला है, वो होने वाला है। हम्म, मेरे को तो लगा प्रॉफिट बनाया होगा बहुत सारा। हाँ। अच्छा, कोई नहीं। इट्स ओके, दुख हुआ सुन के। क्या अरे इतना इतना प्यारा ट्रेड था ये वाला, नहीं? एकदम। बट वही था कि एनएफपी के कारण ना थोड़ा डर लग रहा था इस ट्रेड में, क्योंकि एनएफपी थी तो लग रहा था कि अगर ये ऊपर गया तो फिर किसी की नहीं सुनेगा ये। फंडामेंटल के सामने टेक्निकल की नहीं सुनता है कोई भी प्लेयर, तो इसीलिए उस सिचुएशन में ध्यान से रहना पड़ता है। बाद बाकी सब ठीक है। साइकोलॉजी पे कितने लोग काम कर रहे हो यहाँ पे? कैसे कैसे? ओके। ठीक है। ओके। हाँ, क्योंकि देखो जब तुमको प्रॉफिट और लॉस से फर्क नहीं पड़ता है, उस सिनेरियो में अपना दिमाग भी ढंग से काम करता है। जब लॉस से फर्क पड़ने लगता है तो तुम स्टॉप लॉस से पहले हिट हटा दोगे, उस ट्रेड को स्टॉप लॉस लगाओगे ही नहीं। तो पोजीशन साइज करेक्ट रखने का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप उसको रख पाओगे, या फिर हिट एग्जिट करना आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कि मतलब प्रॉफिट हिट हुआ है या लॉस हिट हो रहा है। सो दैट इज द स्टेट ऑफ योर साइकोलॉजी। ये आपको पता है नहीं? किसने बताया? अच्छा, तो लाइक आपको पता होता है कि आपकी अगर ये ट्रेड लॉस हुआ है तो अगला ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट देगा। बस कॉन्फिडेंस ही रखना, है ना?
क्योंकि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनते देर नहीं लगती है। रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं आएंगे। कम हो जाते हैं। हाँ, वो कम हो जाते हैं और यही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो। क्या क्या क्या? टाइम फ्रेम आप देखिए, 1 आवर 15 मिनट। हाँ, दोनों बढ़िया हैं लेकिन नहीं, ऐसा कुछ फिक्स रेशियो नहीं है। जब तक आपको लगता है कि आपका टारगेट हिट नहीं हो जाए या फिर एक अच्छा रिवार्ड नहीं मिल जाए, तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। बहुत ट्रेड क्या होता है कि जैसे मैंने मान लो डबल टॉप ट्रेड किया, ये डबल टॉप यहाँ बन रहा है, उसके बाद वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? और वो कल सुबह जाके ऐसे गिरता है। और बहुत डबल टॉप में ऐसा भी होता है कि मैंने लिया और वो ऐसे गिर जाता है। तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है ना, तो वो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पर। जाएगा बराबर। आज नहीं, कल, परसों परसों की बात है। हम्म। हाँ, राइट राइट राइट। दिख रहा है मुझे। हम्म हम्म। ये आई गेस ये जो चीज है ये तो ओवरनाइट चली थी आई गेस, ये वाली जो चीज है। क्योंकि मैंने सुबह प्रॉफिट कुछ बुक किया था इसमें, और ये फिर उसके बाद अपसाइड गई थी। मैंने 200 250 डॉलर बुक किए थे इसमें 20 25 के। तो ये काफी इस लेवल पे जो ये मूव कर रही है ना, वो हो गई रेंज बाउंड मार्केट हो गई थी यहाँ पे। एंड देन ब्रेक एंड देन बूम। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने एक एक दिन तो मैं बाई में था, मतलब परसों मैं बाई में था गोल्ड में, और कल मैं सेल में था। सो ऐसा है। टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप लोग एक्टिव रहते ही हो। अरे पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है, बट हाँ, गोल्ड सबसे ज्यादा पैसा भी गोल्ड ही बना के देता है। बारवा की पेयर कितना देता है? 200 डॉलर, 400 डॉलर। गोल्ड एक बार में देता है 1000 डॉलर। ये मजा भी आता है ट्रेड करने में। हाँ, गोल्ड गोल्ड के अंदर अच्छी आती है। हम्म। कुछ तो रिश्ता है हमारा सोने के साथ। अच्छा, ये सही। सोने पे सुहागा हो जाता है। चलो, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। दूसरे बैच के बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं। सिल्वर गोल्ड के साथ XAUM, XAG, वो तुम यहाँ पे देख लेना। मैं कोरिलेशन का मैंने लिंक दिया है। आप नहीं दिया है आप लोगों को? जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ, न्यूज वाले का मैं भेज देता हूँ। और को
क्या स्ट्रेटजी किस चीज में? चार्ट पैटर्न कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम में अपन डाइवर्जेंस देखेंगे। डाइवर्जेंस के बाद स्ट्रेटजी देखेंगे। या बीच में कुछ और मुझे मिल गया तो वो भी देख लेंगे। टुमारो है सेशन, है ना? क्या क्या क्या? हाँ, हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा आपको, ये कोरिलेशन का। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कैसे हम लोग इसको रीड करते हैं, क्या क्या कैसे होता है इस पे। तो वो देखेंगे अपन। आई गेस नेक्स्ट क्लास में डाइवर्जेंस देख लेंगे और कोरिलेशन भी देख लेंगे, टाइम मिल गया तो। ठीक है। चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड। गुड नाइट। गेम्स एंटरटेनमेंट, फजील मोहम्मद। थैंक यू। और कैसे हो? बढ़िया। कैसा गया वीक? बढ़िया। चलो, एक्सपेक्टेशन बढ़, मतलब यही था तुम लोगों से। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो मिला भगवान का प्रसाद समझ के रख लीजिए। और भगवान से कहिए कि कम से कम 1:2 का तो प्रसाद दें, है ना? और जब लगे कि वो भी नहीं मिल रहा है, तो जो मिले खुशी खुशी लेके निकल जाना चाहिए, संतोष इसी में है। क्या समझे? महाभारत कितने लोगों ने देखी है यहाँ पर? कोविड के टाइम में आता था ना, महाभारत। रोनित, उत्कर्ष, यश, शाहिदी, मुकेश, प्रीतम। ओके। रामायण देख नहीं, रामायण ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता है उससे, मतलब हाउ टू डील विद द डेली लाइफ, वो नहीं मिल पाता है उसमें। बट महाभारत छल प्रपंच सब कुछ बताता है, तो कलयुग के लिए वो काफी इम्पैक्टफुल है। चलो, तो आई गेस अपने पास बस 6 जन बचे हैं, है ना? तो जल्दी ही हम लोग सेशंस को खत्म करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, मैंने आपको आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट के बारे में, लाइक म्यूचुअल फंड एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग? नहीं बताया? कोई नहीं, आज देख लेंगे अपन। ठीक है।